Okay, no more questions. So listen to the lecture first. ओके ये एक सीरीज है 1 6 11 16 21 26. This is a simple series 1 6 11 16 21 26. Series of n numbers. So if I say series 1 of 1, सीरीज ऑफ 1 का क्या मतलब है? अगर मैं n की जगह पर 1 लिख देता हूं तो सीरीज ऑफ 1 मींस पहला नंबर. सीरीज ऑफ 2 मींस 6. सीरीज ऑफ 3 मींस, सीरीज ऑफ 4 मींस 16. सीरीज ऑफ 5 मींस 21. Series of 6 is equal to 26. Excellent. So now let's do one thing. So it is 1 6. Okay, so let me write the series again over here. So it is 1 6 11 16 21 26. जी आप क्या मतलब है? कीप क्वाइट. अगर कोई पूछ रहे हैं तो आप बाहर जाके जवाब दें. 31 21 26 and then it is 30. Okay, that's fine. Okay, so we can remove it. So if I ask, so what is series of 1? So this is the base condition. Series का पहला number will be the base condition. Okay, so अगर आप किसी की आवाज आई तो I will not ask him to not talking, or I will not ask him to remain silent. But I will ask his name and deduct his marks. Otherwise, I will ask him to leave the class. So simple rule: do not speak with each other. Only speak with me. Raise your hand, ask question. Raise your hand, ask question. So series of 1 is equal to 1. This is the base condition. The first number of the series is always the base condition. The first number of the series is always the base condition. And now series of 2 is equal to what? It is 6. And can I write like this? 6 1 plus 5. And now this 1 is equal to actually what? Series of 1. And now we have series of 3, which is equal to 11, which is equal to 6 plus 5. 6 is equal to series of 2 plus 5. तो series of 2, 11 कैसे आया? 6 में अगर 5 ऐड करते, 6 कैसे आया? 1 में अगर 5 ऐड करते, 16 कैसे आया? 11 में अगर 5 ऐड करते. इट्स सो सिंपल. तो अगर मैं आपसे कहूं कि सीरीज ऑफ 4 इज इक्वल टू सीरीज ऑफ प्रीवियस नंबर यानी सीरीज ऑफ 3 प्लस 5, इट्स सो सिंपल. सो अगर मैं आपसे कहूं कि ये सीरीज ऑफ 5 जो 21 है, 21 कैसे आया है? Add 5 and 16. So series of 5 is equal to series of 4 plus 5. It's simple, right? And series of 6 is equal to series of 5 plus 5.
It's so simple. Now a $1,000,000 question comes. Series of n is equal to what? Raise your hand who you speak, sir. Yes, sir. Series n plus 5. Okay. Yes, sir. You. Yeah. No, the last guy. Plus 5. Yes. Okay. Both of you are right. Anyone else? So series of n minus 1 plus 5. So 3 of you are right. Series of n is equal to series of n minus 1 plus 5. And this is the recursive formulation. And that is what we have done. So सबसे मुश्किल काम recursive formulation बनाना था जो हम बना चुके हैं. बेस कंडीशन भी बना ली और रिकर्जन रिकर्सिव फॉर्मुलेशन भी बना ली. ये दो काम मुश्किल थे, दोनों हम कर चुके हैं. राइट. इसके बाद का जो काम है रिकर्जन ट्री बनाना. ठीक है. अगर आपसे कहा जाए सीरीज ऑफ 4 का रिकर्जन ट्री बनाएं तो प्लीज इसको जल्दी से बना दें. रिकर्जन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. राइट. यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लें. यस सर. अगर आप सीरीज को 0 से स्टार्ट करने में कंफर्टेबल हैं तो सीरीज ऑफ 0 से कर लें. यानी आप इसको यानी पहले नंबर को सीरीज ऑफ 0 कह लें, फिर इसको सीरीज ऑफ 2 कह 1 कह लें, इसको सीरीज ऑफ 2 कह लें. लेकिन सूडो कोड में नॉर्मली क्योंकि अरेज भी 1 से स्टार्ट होती है तो सिंपलिसिटी के लिए हम 1 से स्टार्ट कर लेते हैं. तो सीरीज ऑफ 1, सीरीज ऑफ 2, सीरीज ऑफ 3. तो इसी तरह से स्टार्ट करेंगे हम अपने कोर्स की कन्वेंशन में. तो सीरीज ऑफ n इज इक्वल टू सीरीज ऑफ n minus 1 plus 5. That do the job. तो अब सीरीज ऑफ 4 के लिए रिकर्जन ट्री बनाइए. प्लीज डू इट क्विकली. जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं ऑल ऑफ यू शुड डू दैट. You're right. You're right. And series of 1 is equal to. So now I will do the easy part. So this is this. And that's it. And now what is left? ये 1 को मैंने ऊपर भेजा तो ये सीरीज ऑफ 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया 1. और फिर 5 plus 1 is 6. This is and 6 plus 5 is 11 plus 5 is and 16 is the answer. So series of 4 is 16. You can very well confirm. And that is what we have done. अब कोई बता सकते हैं recursion tree का क्या फायदा होता है? Anyone? What is the benefit of recursion tree? Yes.
यस यस, एक तो ये कि रिकर्जन रिकर्सिव फॉर्मुलेशन हम लिख तो लेते हैं लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमें समझ नहीं आ रहा होता है कैसे काम कर रही है। तो ये आपको बता रही होती है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे चल रहा है और कैसे वैल्यू ट्रांसफर हो रही है। नंबर 2, जब आप रिकर्जन का सूडो कोड लिखेंगे, जब आप रिकर्जन का सूडो कोड लिखेंगे तो उस सूडो कोड का एक्चुअली ये ड्राई रन है। इट्स द ड्राई रन ऑफ द सूडो कोड, इट इज द ड्राई रन ऑफ द सूडो कोड। आप सूडो कोड को ड्राई रन करेंगे तो कमोबेश यही होगा। अगर फंक्शन का नाम सीरीज ही था तो ऑलमोस्ट यही होगा। सो दिस इज द ड्राई रन ऑफ द सूडो कोड व्हिच यू विल राइट। तो अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप इसका सूडो कोड लिखेंगे। दैट इज व्हाट यू आर गोना डू। तो ये देखें, ये रिकर्सिव फॉर्मुलेशन है और ये बेस कंडीशन है। जैसे हमने पहले किया था कि यहां पर आपने क्या किया कि बिल्कुल वही मेन का कोड बिल्कुल वही है। ये वही कोड है जो कि हमने लास्ट एग्जांपल की थी विच वाज पावर वाली जो एग्जांपल थी, राइट। उसके अंदर बिल्कुल यहाँ पर हमने एक्स और वाई लिए थे इनपुट में, अब यहाँ पे एन लिया हुआ इनपुट में। बिल्कुल वही कोड है मेन का, कोई फर्क नहीं आया। और जो रिकर्जन का कोड होगा वो भी बिल्कुल वैसे ही होगा। सिंपली ये रिकर्सिव फॉर्मुलेशन एल्स कंडीशन में आ जाएगी और बेस कंडीशन इफ में आ जाएगी। यानी कोड में आपने ये 2 लाइनें चेंज करनी है एंड दैट्स इट। इंटरेस्टिंग। और ये सिर्फ इसमें नहीं है, हर रिकर्जन में यही करना होगा। सिर्फ कोड की 2 लाइनें चेंज करो, कोड चेंज हो गया। नाउ यू कैन इजीली राइट रिकर्जन कोड। नाउ यू गॉट इट। तो करके दिखा दे जल्दी से, हरी अप। ये देखिए, मैं पिछला कोड खोल देता हूं आपको, पिछला कोड आपकी हेल्प के लिए खोल देता हूं। ये देखिए, ये सूडो कोड जो था इफ y इक्वल्स 0 रिटर्न 1, ये बेस कंडीशन थी। और ये temp इज इक्वल टू, ये राइट साइड पे जो भी कुछ था वो इधर लिखा हुआ है। अब आपकी जो राइट साइड है वो सीरीज ऑफ n-1 + 5 है, वो आप यहाँ पे लिख देंगे बस, बाकी सारा वही है। तो जल्दी से लिख लें। गुड गुड। एनीवन एल्स? मैं उधर से दिखा दूं। Okay, so should I give the solution? This is the solution. If n equals 1, तो क्या कर दो, रिटर्न 1। बेस कंडीशन में क्या है राइट साइड पे 1, तो क्या रिटर्न करो 1। और अगर temp इज इक्वल टू ये जो राइट साइड पे लिखी हुई है ये लिख दो। दैट्स इट, दैट्स इट। Right. So now you understand, this became so easy now, and you can do it with every recursion. अभी अभी पिछले सवाल जो मैंने स्लाइड्स पे दिए हैं वो आप गो ओवर कर सकते हैं। मल्टीप्लाई का फंक्शन है, सम का फंक्शन है, पावर का फंक्शन है, सम ऑफ n नंबर्स का फंक्शन है। उसके अलावा सीरीज में मल्टीप्लिकेशन सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज, अरिथमेटिक सीरीज, तमाम को आप रिकर्सिव फॉर्मुलेशन से सॉल्व कर सकते हैं। और बिल्कुल यही कोड की 2 लाइनें चेंज करनी, सिंपल। अच्छा, अब इस पूरे चीज में आपसे सवाल है, अगर आपको कोई चीज आ जाती है कि इसकी रिकर्जन का कोड बनाएं या इसका रिकर्जन ट्री बनाएं या कुछ भी करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मुश्किल काम क्या होगा? सबसे मुश्किल काम होगा रिकर्सिव फॉर्मुलेशन और बेस कंडीशन लिखना। बेस कंडीशन भी बड़ी आसान है, सिर्फ रिकर्सिव फॉर्मुलेशन लिखना आपके लिए मुश्किल होगा। तो जैसे ही रिकर्सिव फॉर्मुलेशन आप लिख लेंगे, बाकी सब काम करना बड़ा आसान है। ऐसे ही हम ऐसा करते हैं, अगले क्वेश्चंस में अपना टाइम सेव करने के लिए सिर्फ रिकर्सिव फॉर्मुलेशन मजीद बना के देख लेते हैं। मेक सेंस? ओके, तो टाइम क्योंकि 10:43 है, तो साथ साथ जो जाना चाहेगा वो जा भी सकता है और मैं साथ साथ पढ़ाता जाऊंगा। मैं अहमद रजा और अहमद रजा अशफाक, आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। वैसी आवाज है जैसा हम ऑनलाइन पढ़ाते थे उस तरह होती थी? बिल्कुल बिल्कुल सर।
Okay, now we got it. 1 minus 5 25 minus 125 plus 625. So series of 2 is equal to series of 1. उसके साथ हम क्या कर रहे हैं कि जा रहा है, वो बता सकता है ये सीरीज कैसे है, इसका पैटर्न कोई बता सकता है? अगर बता सकता है तो हाथ खड़ा कर दे, अगर बता सकता है तो हाथ खड़ा करिए। यस सर, ये क्या है? क्यों? मेरा सवाल ये है, just calm down, just relax, just calm down, keep quiet. ये 1 है, ये -5 है, ये 25 है। सवाल ये है कि -5 पिछले नंबर के साथ क्या कंप्यूटेशन करेंगे? -5 है, जस्ट डोंट स्पीक। 25 कैसे आया? -5 के साथ क्या करेंगे? 25 है। -125 के साथ क्या करें कि -125 कैसे आया? 25 के साथ क्या करें कि -125 आए? -125 के साथ क्या कुछ करें या क्या कंप्यूटेशंस करें कि 625 आए? सफा, यस, multiply by -5. That was the answer. You wanted to say the same? Okay. So series of 1 is equal to 1. ये तो base condition है. Series of 2 is equal to series of 1 multiplied by -5. Series of 3 will be equal to series of 2 multiplied by -5. Series of 3 will be equal to series of 2 multiplied by -5. Series of 4 will be equal to series of 3 multiplied by -5. Series of 4 will be equal to series of 3 multiplied by -5, and so on. So now the $1 million question comes. Series of n is equal to what, sir? कुछ लोग बगैर हाथ खड़े किए बोलते हैं डोंट स्पीक। -5 मल्टीप्लाई बाय सीरीज ऑफ n -1, उससे लेक्चर का फ्लो, उसका मजा खराब हो जाता है। जो सबसे पहले एकदम हाथ खड़ा करे, आई विल ट्राई कि मैं उसको पहले मौका दे दूं, दैट विल बी बेटर रादर यू स्पीक एंड कीप ऑन स्पीकिंग। और जब ये आदत बहुत ज्यादा हो जाती है तो फिर पूरी क्लास बोल रही होती है पर एक्चुअली यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, एंड दैट इज एक्चुअली नॉट गुड। सो दिस इज series of n is equal to -5 multiplied by series of n -1, and series of 1 is equal to 1. So this is the recursive formulation and this is the base condition. This is the recursive formulation and this is the base condition. Simple. अगले सवाल पे आ जाए। इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी Tn is equal to Tn - 1 plus c है और इसको सॉल्व करना हमने शुरू में देख लिया था। It remains the same, right? Now we have this 1 5 21 85 341. How to solve this? Yes sir. Multiply by times 4 and add 1. Simple, elegant and cute. So 1 multiplied by 4 plus 1 is 5. 5 multiplied by 4 plus 1 is 21. 21 multiplied by 4 is 84 plus 1 is 85. 85 multiplied by 4 is 340 plus 1 is 341. So what is the base condition? Who will tell me? Yes sir. The base condition. What is the base condition? Series of 1 equals 1. And now, what is the recursive formulation? Who will tell me? Sir. Yeah. Series of n will be equal to series of n minus 1 multiplied by 4 plus 1. Simple. And base condition is series of 1 equals 1. And both of
these are done, and the answer is solved. That's it. Okay. So अब recursion tree बनाना और code को तो करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि you just have to change one line, because if you look at the code, तो इस कोड में ये देखें, ये राइट पे जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे चेंज हुआ है, राइट? ये जो राइट पे लिखा हुआ है, this is changed over here, right? And the base condition is return 1, so it's simple. And now, so what is the base condition and what is the recursive function? So before that, series का pattern क्या कहता है, कौन बताएगा? Raise your hand before you speak, sir. Yes. So पहला नंबर से -1 मल्टीप्लाई करो तो -3 आ रहा है, दूसरे नंबर से -1 मल्टीप्लाई करो तो 3 आ रहा है, और फिर 3 को -1 से मल्टीप्लाई करो तो -3 आ रहा है. सो इट्स एन ऑल्टरनेटिंग सीरीज. और इसकी जो रिकर्सिव फॉर्मुलेशन है वो कौन बताएगा? हु विल टेल मी? रेज योर हैंड बिफोर यू स्पीक. यस, एनीवन? यस मैम. सीरीज ऑफ n-1 मल्टीप्लाई बाय -1. So series of 4 n is equal to series of n-1 multiplied by -1. And what is the base condition? Raise your hand before you speak, guys. Yes, Shifa. Series of 1 equals 3. 3. Okay, so recursion tree आप बना लेंगे और सूडो कोड. ये देखिए यहाँ पे जो मैंने इसकी जो बार बार प्रैक्टिस करके जो लेक्चर में बनाया है, कि सूडो कोड में आपको 2 लाइनें चेंज करनी होती है. अगर आप इसको प्रोग्राम करते हैं, you can simply program it. Just type it, write the semicolon and this and that. कोई भी recursive formulation बनाएं, उसमें 2 लाइनें चेंज करें and you are done with the code. It's a big thing, right? Okay. Now, what about this? Raise your hand before you speak, guys. Raise your hand before you speak, guys. Sir. 2. Yes, Shifa. Yes. Multiply by 2, all right? So 3 multiplied by 2 is 6. 6 multiplied by 2 is 12. 12 multiplied by 2 is 24. 24 multiplied by 2 is 48. And now series of n equals to what? White guy, yes. Series of n-1 multiplied by 2. Simple answer. And series of 1 is equal to 3. और इसका कोड तो आप फौरन लिख सकते हैं, है ना? Look, सिर्फ राइट साइड पे ये चेंज किया और तमाम रिकर्जन का कोड लिख लिया. यस सफर. Yeah. I mean, अगर मैं आपको ये इनका सवाल है कि मुश्किल देंगे या इसी तरह के देंगे, अगर मैं आपकी कोई इसकी प्रैक्टिस ना करवाता तो ये काफी मुश्किल थे. बिलीव मी, अगर मैं आपको इस तरह ना पढ़ा रहा होता तो ये काफी मुश्किल थे. तो ये एक्चुअली मुश्किल ही है. तो आई विल ट्राई कि इससे डिफरेंट हो. इससे डिफरेंट का मतलब है कि बिल्कुल ये दे दूंगा तो इसका मतलब है आप रट्टा मार के आए और आप आंसर कर दें, लेकिन इसी तरह के ही होंगे. ठीक है. अगर आपने लेक्चर पूरा पढ़ा हुआ है और असाइनमेंट खुद की है, अगर आपने लेक्चर पूरा पढ़ा हुआ है, असाइनमेंट खुद किए, तो इंशाल्लाह एग्जाम में भी आप बेहतर परफॉर्म कर देंगे. ओके, सो कम टू द लेक्चर, डोंट डिस्ट्रैक्ट. ओके, इट्स डन. जी आप पूछें क्वेश्चंस. लेक्चर हमारा खत्म हो गया.